શ્રી કૃષ્ણ, જેને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહેવાય છે, એ પુરુષ જેમણે અધ્યાત્મ, ધર્મ અને રાજનીતિના સંગમની ફિલોસોફી આખા વિશ્વને આપી. એક કુશળ રાજનીતિજ્ઞ તરીકે મહાભારતના યુદ્ધમાં તેમણે જે શીખ આપી તેના પાઠ આજે પણ પ્રતિષ્ઠિત રાજકીય વિદ્વાનો આપી રહ્યા છે. કૃષ્ણ રાજનીતિથી ભાગ્યા નહીં, પરંતુ તેનો સ્વીકાર કર્યો. આજે જ્યારે સંબંધોમાં કમિટમેન્ટથી લોકો ભાગતા હોય છે, ત્યારે કૃષ્ણ કમિટમેન્ટ શીખવાડે છે. રાધાને મૂકીને તેઓ ભલે આગળ નીકળી ગયા, પરંતુ પ્રેમનું કમિટમેન્ટ આજીવન તેમને પાળ્યું. કાચા તાંદુલ ખાઈને તેમણે દોસ્તીનું કમિટમેન્ટ પાળ્યું હતું. બેમિસાલ દોસ્તી અને તેના દાખલા દુનિયામાં જ્યારે પણ લેવાય છે, ત્યારે કૃષ્ણ અને સુદામાનું નામ સૌથી ઉપર આવે છે. અને એટલે જ એવું કહેવાય છે કે નહેરે જાણેલી કદી નહેરે માણેલી, જેની ગોઠડી તોડાય નહીં તોડી, સંતોરે એવી કૃષ્ણ સુદામાની જોડી. કૃષ્ણ માત્ર મિત્રતા અને પ્રેમના કે રાજનીતિજ્ઞના પાઠ કે રાજનીતિના પાઠ જ નથી શીખવાડતા, પરંતુ એમનું આખું જીવન એક ફિલોસોફી હતું. અને આજે એના પર જ આપણે કેટલાક પ્રકાશ ફેંકીશું એ મુદ્દાઓ પર કે શા માટે આજે હજારો વર્ષ બાદ પણ કૃષ્ણનું જીવન એટલું જ પ્રાસંગિક છે. આજે પણ કૃષ્ણના જીવનમાંથી આપણે શું શીખી શકીએ છીએ, શું શીખીએ છીએ, એ બધા જ મુદ્દાઓ પર આપણે ચર્ચા કરીશું. આપણી સાથે અમોઘ લીલા પ્રભુજી જોડાઈ ગયા છે અને આપણી સાથે મુકેશ ઓઝા કે જે ઉત્સવ વિશેષજ્ઞ છે તેઓ જોડાયા છે. બંનેનું સ્વાગત છે. અમોઘ લીલા પ્રભુજી, કદાચ સામાન્ય માણસ કૃષ્ણને જે રીતે જાણતો હશે, શ્રદ્ધા છે, આસ્થા છે, પરંતુ અમોઘ લીલા પ્રભુજી કે જેઓ કૃષ્ણના જીવન દર્શનને ખૂબ સારી રીતે, ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક જાણે છે, એમની પાસેથી આપણે કેટલાક મુદ્દાઓ પર જાણીશું, જાણકારી મેળવીશું. સર, સૌથી પહેલો સવાલ આપને એ કે કૃષ્ણ જેમનું વ્યક્તિત્વ, વિરાટ વ્યક્તિત્વના તેઓ સ્વામી હતા, પરંતુ ઘણા બધા તેમના વ્યક્તિત્વના સ્વરૂપો હતા, ઘણા બધા પાસાઓ હતા. સૌથી પહેલા આપે, એક સામાન્ય માણસ કૃષ્ણને જે રીતે ઓળખે છે એના કરતા આપ વિશેષ કઈ રીતે ઓળખો છો, શું કહેવા માંગશો એમના વ્યક્તિત્વને લઈને? भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान ने वैसे तो स्वयं बताया श्रीमद् भगवद गीता के रूप में कि किस प्रकार से अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, चैप्टर 10 वर्स नंबर 8 को अगर देखें कि भगवान से ही सारी जगत की सृष्टि हुई है, भगवान श्री कृष्ण से. और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि क्योंकि वो परम भगवान हैं, इसीलिए परम भोक्ता हैं, परम नियंत्रक हैं, परम रचयिता हैं, सारे अवतारों के स्रोत हैं और हमारे परम हितैषी हैं. सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति. तो मुझे ये मानता है कि इस प्रकार से ये मेरी जो वास्तविक स्थिति, अगर कोई ऐसे मानता है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को मैं सुहृद कहलाता हूँ. और भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के बारे में भी गीता में बताया है, जन्म कर्म च में दिव्यम, यानी कि भगवान का जो जन्म है और जो कर्म है यानी लीलाएं हैं वो दिव्य हैं. जैसे हमारा जो कुछ भी होता है, हमारा जन्म होता है, कर्म होता है, तो वो कर्मों के अनुसार होता है. जो हमारे हिसाब किताब, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, या जन्म होता है एक विशेष परिवार में अगर होता है, अगर हमें एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है तो कर्मों के अनुसार मिलता है. लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है ये अपनी लीला के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण खुद अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छा से भगवान लीलाएं करते भी हैं और फिर अप्रकट भी करते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि अगर तिहाड़ जेल में ना अगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कभी जाए तो वो इसलिए नहीं कि वो कैदी हैं, वो जाते हैं औरों की कैद को कम कराने के लिए, जो सुधर रहे हैं उनकी कैद को कम कराने के लिए. उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी इस जगत के अंदर आते हैं लीला करने के लिए. तो हम ये सोचे जन्माष्टमी तो उनका जन्म हुआ होगा, बायोलॉजिकल जन्म हुआ होगा. नहीं, भगवान श्री कृष्ण का बायोलॉजिकल जन्म नहीं होता कि वो कोख में रह करके 9 महीने प्रेगनेंसी के उसके बाद फिर रोते पिटते बाहर आए. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए आते हैं, माता देवकी के यहाँ प्रकट होते हैं, यशोदा मैया के यहाँ भी साइमल्टेनियसली प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण. तो इसीलिए इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म की जो लीला है बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही दिव्य है. બિલકુલ, બહુ જ અદ્ભુત છે એવું કહ્યું અને આગળ પણ એમની પાસેથી આપણે જાણીશું. મુકેશ ઓઝા પાસે જઈએ. મુકેશભાઈ, કૃષ્ણના જીવન વિશે આજે આપણે જ્યારે આ એક એવો દિવસ હોય છે કે જ્યારે આપણે દરરોજ કૃષ્ણના જીવનને અલગ અલગ ટુકડે ટુકડે જીવતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આજે એ સમગ્ર વ્યક્તિત્વને એક સાથે આપણે જાણી શકીએ છીએ અને એ માટેનો પ્રયાસ કરતા હોઈએ છીએ. આપ શું કહેશો એમના વ્યક્તિત્વને લઈને, એમના જીવનને લઈને? આજના કૃષ્ણ જન્મ પર્વ નિમિત્તે આપ સૌને હાર્દિક શુભકામનાઓ. અને આપના હૃદયસ્થ જે કૃષ્ણ છે, આપની આત્મામાં, આપના જીવની અંદર જે કૃષ્ણ છે, અને સંદેશ થકી જે પણ આ દર્શકો આ પ્રોગ્રામ જોઈ રહ્યા છે એમના હૃદયમાં બેઠેલા કૃષ્ણને મારા વંદન. કૃષ્ણ એટલે ઉત્સવ, કૃષ્ણ એટલે સેલિબ્રેશન. કૃષ્ણને ઓળખવા માટે કૃષ્ણમય બનવું પડે. આ કૃષ્ણની ગીતાનો મુખ્ય સારાંશ છે. ગીતાના બીજા અધ્યાયની અંદર પણ કહેવામાં આવ્યું છે
કે કૃષ્ણ ક્યાં છે, તત્વ ક્યાં છે. અર્જુન જ્યારે પૂછે છે ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ એમ કહે છે કે હું મારું સ્થાન અણુ અણુમાં છે. જ્યારે તમે યાદ કરશો સાચી ભાવનાથી ત્યારે હું તમારી સામે રહીશ. આ મૂળ ગીતાનો અધ્યાયનો સારાંશ છે. ગીતા ગણિત પણ છે, ગીતા ભૂગોળ પણ છે, ગીતા વિજ્ઞાન પણ છે. 5200 વર્ષ 5250મી આજે આપણે જન્મ જયંતિ ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ. ત્યારે કૃષ્ણને જાણવો, કૃષ્ણમય બનવું. કૃષ્ણ એ જગત ગુરુ છે. વસુદેવ સુતમ દેવમ કંસચારુને મર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણમ વંદે જગતગુરુ. એ જગતનો ગુરુ છે, ત્યાંથી શિક્ષા મળે છે. અને આજના કલિકાલના કલિયુગની અંદર જે પ્રભાવ ઈશ્વર અને વ્યક્તિ વચ્ચેના સંબંધની અંદર જ્યારે પ્રશ્ન ઊભો થાય છે ત્યારે લોકો આસ્થા અને નાસ્તિક આ બે પ્રશ્નો જરૂર ઊભા થાય છે. આસ્થા અને નાસ્તિકને સમજવા માટે વિજ્ઞાનને સમજવું જરૂરી છે અને વિજ્ઞાનને સમજવા માટે ગીતાને સમજવું જરૂરી છે. ગીતા અને ભાગવતમાં ખૂબ જ અંતર છે. ભાગવત એ કૃષ્ણ ચરિત્ર લીલા વર્ણન છે, જીવન જીવવાની લીલા છે. અને જે ગીતા છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખથી ગવાયેલું જ્ઞાન છે અને કૃષ્ણને આપેલું જ્ઞાન છે. જ્યારે ધર્મ અને અધર્મની પરિભાષા સમજાવવાની વાત હતી ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને ઉપદેશ આપ્યો કે તારા સામે ભલે જે કોઈ હોય પણ જ્યારે ધર્મની વાત હોય ત્યારે તારે શસ્ત્ર અને શાસ્ત્ર બંને ઉઠાવવું પડશે. એ ચરિતાર્થ આજના સમયની અંદર પણ થઈ રહી છે. હા, આવીશું આપની પાસે. આજ કે લાખો પ્રયાસો તેમણે કર્યા કે આ વિભીષિકા, યુદ્ધની વિભીષિકાને ટાળી શકાય, પરંતુ જ્યારે તેમને લાગ્યું કે હવે કોઈ વિકલ્પ નથી બચ્યો ત્યારે તેમણે ધર્મનો સાથ આપ્યો હતો અધર્મની સામે. ફરી આપણે અમોઘ લીલા પ્રભુજી પાસે જઈએ. તેઓ જે રીતે કહેતા હતા અને આજની પેઢી પણ સારી રીતે समझी सके तेवी रीते तेओ उल्लेख करी रहा है. प्रभु जी, कृष्ण के बहुत सारे स्वरूप है, जैसे बताया जाता है कि उनकी बहुत सारी पर्सनालिटीज है. एक हस्बैंड हो, एक लवर हो, एक फ्रेंड हो, एक पॉलिटिशियन, हम बता सकते हैं एक डिप्लोमेट हो, बहुत सारे उनके स्वरूप है. लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे ऐसा उनका कौन सा कैरेक्टर था, कौन सा ऐसा व्यक्तित्व था जो आपको लगता है कि आज भी सबसे ज्यादा प्रासंगिक है? हाँ जी, बिल्कुल. भगवान श्री कृष्ण के जो स्वरूप हैं ये भी वास्तव में दिव्य हैं. वैसे तो अगर मैं देखें वो बोले कि पॉलिटिशियन थे, ठीक है, उनको पॉलिटिक्स खेलने की आवश्यकता नहीं हुई. कमजोर लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं. जो सर्वशक्तिमान हैं ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स खेलने की कोई आवश्यकता नहीं है. जैसे कि हम जानते हैं कि किस प्रकार से जो जयद्रथ है उसको जो मारा था भगवान ने सूर्य डुबो भी दिया, सूर्य निकाल भी दिया. जो विश्व रूप दिखा दे, जो अपने मुख के अंदर पूरी सृष्टि को यशोदा को दिखा दे, ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान को पॉलिटिक्स खेलने की आवश्यकता नहीं है. भगवान श्री कृष्ण लवर भी हैं, लेकिन लवर ऐसा नहीं कि उनको लड़कियां बड़ी अच्छी लगती हैं तो वो ले लवर हैं ना. उनकी ही शक्ति का विस्तार है. जो जितनी गोपियां हैं, श्रीमती राधिका, तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपनी ही शक्तियों का विस्तार करके उनके साथ लीला करते हैं. तो ये गोपियां ऐसे नहीं कोई गाँव की लड़कियां थी, वो कृष्ण भगवान को बड़ी पसंद थी, उनका चक्कर चल गया था उनके साथ. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा दुनिया के लफंडर लोगों के साथ हो सकता है. लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो गोपियां हैं कलह प्रेरक, जैसा बताया गया शास्त्रों में, उन्हीं कलाओं का विस्तार है. जैसे मान लीजिए को अपना हाथ ही ले, को अपने हाथ के ऊपर चूम ले अगर, तो ये नहीं कहेंगे बंदा बड़ा रोमांटिक है, बड़ा अजीब बात होगी ना. कोई व्यक्ति अपने हाथ को चूम रहा है तो, या अपनी परछाई के साथ ही खेले तो दैट इज भगवान अपने ही विस्तार के साथ लीलाएं करते हैं. तो गोपियां ये कोई साधारण नहीं है. तो इसलिए भगवान के जितने भी है ना ये रसिक प्राकट्य हैं, चाहे वो गोपियों के साथ हो, सखा हो, या अर्जुन के हों, या फिर मधुमंगल के सखा हों, ये सब जितने रिश्ते हैं ये सब डिवाइन रिश्तों में आते हैं. माता यशोदा उनकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, देवकी मैया उनकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, या नंद महाराज वसुदेव उनके बायोलॉजिकल फादर नहीं है. ये सब कुछ डिवाइन लेवल पे चलता है, स्पिरिचुअल लेवल पे चलता है. इसीलिए इसकी दिव्यता को समझना अक्सर साधारण व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. लेकिन हाँ, जैसे जैसे भगवान में अगर बेसिक श्रद्धा भी लेकर के आएंगे, उनके भक्तों का संग करेंगे, निश्चित रूप से भगवान की जो दिव्यता है उसको समझ पाएंगे और फिर मन करेगा हम उनकी और भक्ति करें और इस मनुष्य जीवन को सफल करें. बिल्कुल. हजारों साल हो गए उनके जन्म को, ईश्वर है, भगवान है, लेकिन आज की जनरेशन भी उनके साथ वो तादात्म्य रख सकती है, वो साथ सकती है, को रिलेट कर सकती है अपने जीवन को कृष्ण के जीवन के साथ. तो ऐसा क्यों, क्या था ऐसा खास? जी, एक्चुअली आप देखें इस दुनिया के अंदर ना हम सबके सब आनंद की तलाश में, खुशियों की तलाश में. और आनंद के सागर भला कौन है, अखिल रसामृत मूर्ति भला कौन है, रसराज भला कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं. तो इसलिए जगत के अंदर जो जो खुशियां ढूंढ रहे हैं, तो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर बता रहे हैं जो कुछ भी महान है जगत के अंदर वो मेरी विभूति है.
तो फिर हम उनकी विभूतियों में मान लो कोई बड़ा सुंदर है, बड़ा यशस्वी है, बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा ज्ञानवान है, ऐसे व्यक्ति से हम बड़ा आकर्षित होते हैं। पर ये लेकिन ये सारे ऐश्वर्य भला ओरिजिनली किसमें पाए जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण के अंदर, एंड दैट टू इन इनफाइनाइट क्वांटिटी एंड दैट टू फॉर एवर। हमारे में ये जो ऐश्वर्य है उनका कुछ पार्ट मिलता है, वो भी एक पर्टिकुलर ऐश्वर्य। मान लो कोई बड़ा नॉलेज वाला है, कोई ज्ञानवान व्यक्ति है, नहीं हो सकता वो सुंदर ना हो सकता कोई सुंदर हो तो वो धनी ना हो, लेकिन फिर भी हमें आकर्षित करते हैं। ऐश्वर्यों से हम लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन सारे के सारे ऐश्वर्य इनफाइनाइट क्वांटिटी में हमेशा के लिए किस में उपस्थित हैं? भगवान में। तो भगवान का मतलब होता है भगवान, भग का मतलब ऐश्वर्य और वान का मतलब धारण करने वाले। तो सारे ऐश्वर्यों को इनफाइनाइटली कैरी करने वाले हैं, धारण करने वाले हैं एज इज इनहेरेंट नेचर, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए हम जब उनकी विभूतियों का हल्का फुल्का देख रहे थे तो आकर्षित हो जाते हैं। तो वो जब सारी विभूतियां जिनके सोर्स भगवान श्री कृष्ण है, जब उनको देखेंगे तो क्या ही आकर्षण होगा। इसीलिए इवन नास्तिक लोग भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कमेंट करने से चूक नहीं पाते। भले कुछ बोलेंगे वो कृष्ण था, वो रात को लड़कियों के साथ डांस करता था, वो चोरी को करता था, तो ठीक है वो करते तो अपना काम करो ना, क्या करे सर, वो उनसे अट्रैक्शन हो जाता है हमारा, क्या करें। सो कृष्णा इज वेरी अट्रैक्टिव इवन टू एन एथियस्ट। नास्तिक लोग भी उन पे कमेंटबाजी करने से बच नहीं पाते, बिकॉज दैट्स हिज इनहेरेंट नेचर ऑफ बीइंग सुप्रीमली अट्रैक्टिव। और भगवान अगर अट्रैक्टिव नहीं होंगे तो भला और कौन होगा? हमने देखा अक्सर कई बार लोग भगवान को डिपिक्ट करते हैं एज एन ओल्ड मैन, दाढ़ी वाड़ी है, सोफे बैठा है, पॉपकॉर्न खा रहा है, वो ऐसा क्या हो गया, ये कौन है? भगवान है, ये सृष्टि कर करके बूढ़ा हो गया ये। ना ना, नव यौवनम च, लॉर्ड श्री कृष्णा इज नव यौवनम, इज एवर यूथफुल। सो भगवान की इटर्नल एज इज 15.5 साल। तो भले ही भगवान पुराणम मतलब पुरातनम है, जिस ओल्डेस्ट हैं, लेकिन फिर भी भगवान दिखते हैं एज 15.5 ईयर ओल्ड बॉय। सो भगवान यूथफुल है, बिल्कुल फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्यूटी है। तो इसलिए ऐसे अमृतमय व्यक्ति से भला आकर्षित नहीं होते, भला और किससे आकर्षित होंगे? इसलिए जो इनसे आकर्षित होता है उसके लिए संसार के सारे आकर्षण का तेल लेने, चाहे कोई सुंदर व्यक्ति हो, कोई सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष, पैसा, धन, ऐश्वर्य, यश, अरे सब किनारे भाई, मुझे ये चाहिए, इनसे सब कुछ आ रहा है, दैट कृष्णा। इसीलिए वास्तव में सबको देखिए कितना अद्भुत है। कितने लोग हैं नाम लेते हैं, थोड़ा स्ट्रगल भी करते हैं, मन भी भागता है, उनको बोलो तो नाम लेना छोड़ दो, मन भाग रहा है ना, अरे मत लो, नहीं मन भाग रहा है लेकिन फिर भी हम नाम तो लेंगे। इवन ऐसे भागते हुए मन के साथ भी नाम लेने में नाम आकर्षित करता है जिनका, तो वो व्यक्ति क्या ही होंगे वास्तव में। तो इसलिए भगवान शुड बी मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी एंड कृष्णा इज द मोस्ट अट्रैक्टिव। तो कृष्ण का मतलब है, कृष्ण का मतलब मोस्ट अट्रैक्टिव, रणा का मतलब आनंद के सागर। सो इसीलिए वो आनंद के सागर सबसे अधिक आकर्षक हैं, इसलिए उनका नाम है कृष्णा। બિલકુલ મુકેશભાઈ જે વાત કરી ખૂબ સાચી છે કે તમે એમને પસંદ કરો ના પસંદ કરો, જેમ કહેવાય છે કે કોઈને પસંદ કરો ના પસંદ કરો, પરંતુ એમને ઉપેક્ષા તમે ન કરી શકો। અને કૃષ્ણ કેવું વ્યક્તિત્વ હતું? તમારા મતે કૃષ્ણ હોવું એટલે શું? કૃષ્ણની મને જે મુખ્ય વાતો ગમે છે એ જે અત્યારના સમયમાં સાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે એ છે કર્મનો સિદ્ધાંત। ભગવાન શ્રીએ કૃષ્ણમાં ગીતામાં કહ્યું છે કે તમે કર્મ કરો, ફળની આશા ના રાખો। યજ્ઞ પુરુષ કહેવાયા। યજ્ઞ પુરુષ એટલે જે આપણા ધર્મ સંસ્કૃતિમાં યજ્ઞ થાય છે, યજ્ઞથી વાદળો બંધાય છે, વાદળોથી વરસાદ થાય છે, વરસાદથી અનાજનું ઉત્પાદન થાય છે, એનું સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે અને અંતે માટીમાં મિલિત થઈ જાય છે। આ એક સંસાર ચક્ર છે। એટલે આ જે ચક્ર છે એ ગીતાએ સંદેશ આપેલો છે। માત્ર એક કર્મયોગી છે એવું નહીં, એ કર્મયોગીનો સિદ્ધાંત આપણને આપ્યો। એ સહનશીલ પણ છે। સહનશીલમાં શિશુપાલની 99 ગાળ ખાઈને એ પણ જે સહનશીલતા બતાવીને 100મા ગાળે એમણે જે વાંસુળી વગાડનાર હતો એ શસ્ત્ર પણ ઉઠાવી શકે છે એ પણ સાબિત કરી આપ્યું। એટલે એ સહનશીલતા અને ક્યારે તમારે શાસ્ત્રાર્થ યુદ્ધ કરવાની તૈયારી માટે તમારું કેવું બાહુબળ છે એ પણ આપણે સમય સમયે પુરવાર કરવું પડતું હોય છે। ગીતાના એક શ્લોક યા ભાગવતના કોઈ પણ ચરિત્રના શ્લોકને લો જે આપણા જીવનને ચરિતાર્થ કરે છે। રાધાના પ્રેમની વાત હો કે રૂકમણીના પ્રેમની વાત હો, જ્યારે રૂકમણીનો એક પ્રસંગ એવો હતો કે એણે મનથી વર્ણી ગઈ અને પત્ર લખ્યો, અને પત્ર જ્યારે બલરામે કીધું કે આ કોઈના પત્ર ઉપરથી થોડી પરણી જવાય, ત્યારે ભગવાન શ્રી એમ કૃષ્ણ એમ કહે છે કે પરણવું શરીરથી પરણવું અલગ વસ્તુ છે, પણ જે મને મનથી વરી ચૂકી છે, જે મને પરણી ચૂકી છે, એને હું કેવી રીતે ત્યાગ કરું। ત્યારે ભગવાન જ્યારે એને રૂકમણીને લેવા જાય છે
અને લેવા જાય છે, જ્યારે એમનો રથ જે ગતિએ આગળ વધે છે, ધૂળની ડમરીઓની અંદર ગતિએ આગળ વધે છે, અને જે મંદિરેથી એક હાથે જે બાહુબળે એક હાથના બાહુબળે રૂકમણીને ઉઠાવીને રથમાં નાખી દે છે. કદાચ આવું વર્ણન તો આપણા ફિલ્મકાર સંજય વંશાલી પણ ન કરી શકે. એટલે કહેવાનો સંદેશ એ છે કે ભગવાનનો માત્ર હાથ દેખાઈ જાય ને તો હાથ પણ પકડી લેવો. બિલકુલ. અને એમનો જીવન સંદેશ કે જે આજે પણ કરોડો લોકો પોતાના જીવનમાં ઉતારી શકે છે. ફરી આપણે અમોઘ લીલા પ્રભુજી પાસે જઈએ. दार्शनिक कहे जाते थे कृष्ण, ऐसा बताया जाता था कि उन्होंने जो उनका जीवन दर्शन है वो आज भी पढ़ाया जाता है, IIM जैसी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है. भगवत गीता में जो लिखा गया है, महाभारत की युद्ध के समय उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो आज भी सिखाया जाता है, लोगों को, युवाओं को सिखाया जाता है. क्या थी उनके जीवन की फिलॉसफी? एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण की जो फिलॉसफी है इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल. भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पिरिचुअल जो कंटेंट है सिर्फ उसी की बात करते हैं. भगवान श्री कृष्ण डे टू डे लाइफ की बात भी करते हैं. जैसे वो एग्जाम्पल अगर 6ठे अध्याय के अंदर देखें तो भगवान खाने और सोने की बात भी करते हैं. भगवान 17th अध्याय के अंदर सात्विक खाना कैसा होता है, राजसिक खाना कैसा होता है, तामसिक खाना कैसा होता है, इसकी बात भी करते हैं. वाणी की वेदी बात करते हैं. अगर आप चैप्टर 17 वर्स 15 को पढ़ेंगे, सो अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, तो वाणी के वेग की बात भी करते हैं, मन के वेग की बात भी करते हैं, शरीर के वेग की बात भी करते हैं. तो इससे बड़ी प्रैक्टिकल फिलॉसफी भगवान श्री कृष्ण की. जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्जुन ने पूछा कि भगवान हम पाप नहीं करना चाहते, हम पाप क्यों कर बैठे हैं. 3रे अध्याय पूछते हैं अर्जुन. भगवान श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया उसका. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं काम ऐशा क्रोध ऐशा रजोगुण समुद्भव, कि किस प्रकार से काम जो कि रजोगुण में डूबा हुआ है और अल्टीमेटली जो फ्रस्ट्रेशन की ओर जाता है, तमोगुण की ओर जाता है, वो है वास्तव में पाप का कारण है. सो लस्ट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सिन. हम जो पाप नहीं करना चाहते फिर भी कर बैठते हैं, गिल्ट भी आता है, क्यों किया फिर से करते हैं. क्यों? क्योंकि रजोगुण की वजह से. अभी ये हमने कभी सोचा नहीं कि यार ये जो सिन आसपास हो रहे हैं सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी है, और वो जो सॉफ्टवेयर में जो वायरस है दैट इज रजोगुण. ओ ये अहंकार है जो तमोगुण. अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं. तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण एकदम रूट कॉज एनालिसिस पे कार्य करते हैं भगवद गीता में. सो वो बाहर का सिर्फ मोटिवेशन स्पीकिंग नहीं करते, कर दिखाओ, कर लोगे, ऐसा तुम कर लोगे, कोई नहीं कर ऐसा तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, तुम छत को फाड़ दोगे, जमीन में आग लगा दोगे, ये कर दोगे. अरे भाई नो नकली मोटिवेशनल स्पीकिंग. भगवान श्री कृष्ण स्पीक्स ग्राउंड लेवल रियलिटी, एकदम ग्रास रूट लेवल पे जाकर के भगवान श्री कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं भगवद गीता को. तो इससे वो जो कनेक्शन है ना जो लेकर के आते हैं भगवान, जो प्रैक्टिकलिटी लेकर के आते हैं भगवान श्री कृष्ण अपनी शिक्षाओं के अंदर, दैट्स व्हाई उनकी शिक्षाएं दे आर सो पॉपुलर. की IIM अहमदाबाद के अंदर भी कोर्स चलता है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम भगवद गीता. और भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसी कोर्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं. एंड इन दिस वे सो मेनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग बेनिफिटेड. तो हालांकि भक्ति का ज्ञान दिया, लेकिन उस भक्ति ज्ञान के अलावा भगवान ने और ज्ञान भी दिया है ताकि इस जगत में भी लेकर रहकर के हम सफलतापूर्वक खुशीपूर्वक रह सके, और देन परलोक में भी भगवान श्री कृष्ण के धाम में भी ભગવાન કી સેવા में લગ શકે. હા બિલકુલ. એટલે મોટિવેશન તો આપે છે પરંતુ એમનું મોટિવેશન મોદું નથી હોતું. અને અત્યારે મોટિવેશનલ સ્પીકર્સનો જ્યારે રાફડો ફાટ્યો છે, લોકો પૈસા ચૂકવીને મોટિવેશન લેવા જાય છે. જો માત્ર કૃષ્ણના જીવનને સમજી લે તો શેની જરૂર નથી પડતી. છે સૌંદર્ય, માધુર્ય, ચાતુર્યના સ્વામી એટલે કૃષ્ણ. મુકેશભાઈ, આપણી પાસે સમય બહુ ઓછો છે, પરંતુ જો કૃષ્ણને આપણે રંગોમાં અત્યારે મૂકીએ, એમનું જીવનનું મૂળ દર્શન શું હતું? કૃષ્ણ પ્રકૃતિ પુરુષ કહેવામાં આવે છે, પ્રકૃતિ પ્રેમી કહેવામાં આવે છે. માત્ર પ્રાણી માત્ર નહીં, જીવ માત્ર નહીં, તમામમાં પ્રકૃતિમાં પણ કૃષ્ણ છે. એટલે જ્યારે ગોકુળની અંદર ઇન્દ્રની પૂજા કરતા હતા, કૃષ્ણ ઇન્દ્રની પૂજા બંધ કરાવી અને એમણે કીધું કે તમે પર્વત, નદી અને પહાડની પૂજા કરો, પ્રકૃતિની પૂજા કરો. એ સૃષ્ટિનો ખરો અધ્યાય છે, એમ એક માર્ગ છે. અને જે કૃષ્ણ કોણ છે, તો કૃષ્ણને જે સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણથી જુએ છે, કૃષ્ણનું સ્વરૂપ જુએ છે, એ કૃષ્ણમય બની જાય છે. અધર્મ મધર્મનો જે શ્લોક છે એની અંદર કહેવાય છે કે હે કૃષ્ણ, તારું મુખ સુંદર છે, મધુર છે, તારી નેત્ર મધુર છે, તારા કાનના કુંડલ મધુર છે, તારા વાંકડિયા વાળ મધુર છે, તારા ગળામાં વૈજયંતી માળા મધુર છે, તારો ચહેરો નહીં તારું જીવન મધુર છે, તારી ગોપીઓ, તારી ગાયો બધું મધુર છે, તારી વાંસળી મધુર છે, તારા સુર મધુર છે, તારી ગોપીઓ સાથેનો રાસ મધુર છે. એટલે મધુરની દ્રષ્ટિકોણથી આપણે જ્યારે કૃષ્ણને જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે કૃષ્ણ, સાચા કૃષ્ણને જાણીએ છીએ અને આપણી ભક્તિ કૃષ્ણને ચરણોમાં પહોંચે છે. બિલકુલ. ફરી આપણે અમોઘ લીલા પ્રભુજી પાસે એમનો છેલ્લો જવાબ સાંભળી લઈએ, છેલ્લો સવાલ એમને કરી લઈએ.
प्रभु जी, अभी सनातन धर्म पर हम जैसे देखते हैं बार बार, जैसे गर्मा गर्मी होती है, पॉलिटिशियन स्टेटमेंट देते हैं, उसके ऊपर विवाद छेड़ते हैं। आप सनातन धर्म को केंद्र में रख के जो बोला जाता है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं बस यही कहूँगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इसीलिए ना जब बुद्धि भ्रष्ट तभी होती है जब विनाश का काल पास आया होता है। तो इस प्रकार की कमेंटबाजी करना ही वास्तव में एक ऐसा नैरेटिव है जो कि व्यक्ति के लिए नुकसानदायक ही साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम देखते हैं सनातन की जो वेव है ऑल अक्रॉस द ग्लोब है, और आज देश, न सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हम देख रहे हैं लोग सनातन संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। वो चाहे इंडोनेशिया हो, जहाँ की क्वीन को फॉलो करते हुए शी बिकेम हिंदू, उसके बाद फिर 25,000 उनको फॉलो करते हुए 30,000 उनको फॉलो करते 50,000 ये लोग कन्वर्ट हो गए इंडोनेशिया जैसी जगह के अंदर। रशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है सनातन धर्म। यूरोप के अंदर भी आप धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूके एंड पोलैंड के अंदर जो यूथ फेस्टिवल होता है सनातन धर्म का, उसके अंदर 50,000 लोग आते हैं। उसी प्रकार से अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखें, नॉर्थ अमेरिका में भी कई लोग हैं। लॉस एंजलिस में तो अमेरिकन हैं हु आर ज्वाइनिंग हरे कृष्ण मूवमेंट बिग टाइम। सो इसलिए हम देखते हैं पूरे विश्व भर में लोग सनातन की ओर आ रहे हैं, और ये वेव सनातन की ही है। तो बोलना कि सनातन जो है डेंगू है, बीमारी है, और इस प्रकार इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, एंड इट वाज अ वेल स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट। ऐसा नहीं कि एक इमोशनल आउटबर्स्ट में आकर के इसने बोल दिया हो, उसके बाद व्यक्ति बोले मैं माफी भी नहीं मांगने वाला। मैंने जो बोला बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही। तो मैं ये बोलता हूँ विनाश काल विपरीत बुद्धि। बिल्कुल ठीक है। તમે બંને અમારી સાથે જોડાયા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। અને કૃષ્ણ વિશે કહેવાય છે કે કૃષ્ણ એ જળ નથી, કૃષ્ણ એ પરિવર્તન છે, કૃષ્ણ એ બદલાવ છે, ને એટલા માટે જ કહેવાય છે કે અધરમ મધરમ વદનમ મધરમ નયનમ મધરમ હસિતમ મધુરમ મધુરાધિપતે રખલમ મધુરમ।